الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی ساسن تفسیر کا لیسن نمبر 2.132 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 132 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ ٹاپکس کا ورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذْ روٹ ورڈ ہے الف دال سے، معنی اور جب، اینڈ وین۔ جعلنا جیم عین لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی بنایا ہم نے، وی میڈ۔ البیتا با یا تا سے روٹ ورڈ ہے، معنی گھر، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، دا ہاؤس۔ مثابتن سا واو با سے روٹ ورڈ ہے، معنی اجتماع کی جگہ، a place of assembly۔ للناسی نون واو سین سے روٹ ورڈ ہے، معنی لوگوں کے لیے، for mankind۔ وَأَمْنَا الف میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور امن کی جگہ، and a place of security اور safety۔ وَاتَّخِذُوا الف خا ذا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور تم بناؤ، and take۔ من میم نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی سے، from۔ مقام قاف واو میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی مقام یا جگہ، the place or the standing place۔ ابراہیم الف با را سے روٹ ورڈ ہے، معنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم۔ مصلی صاد لام واو سے روٹ ورڈ ہے، معنی نماز کی جگہ، a place of prayer۔ وحدنا عین ہا دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور ہم نے عہد لیا، and we made a covenant۔ الہ الف لام یا سے روٹ ورڈ ہے، معنی سے، with۔ ابراہیم الف با را سے روٹ ورڈ ہے، معنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم۔ و اسماعیل الف سین میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور اسماعیل علیہ السلام، اینڈ اسماعیل۔ ان الف نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی کہ، دیٹ۔ طہر طہا را سے روٹ ورڈ ہے، معنی پاک رکھیں، پیوریفائی۔ بیتیا با یا تا سے روٹ ورڈ ہے، معنی میرا گھر، مائی ہاؤس۔ للطائفین طاف واو فا سے روٹ ورڈ ہے، معنی طواف کرنے والوں کے لیے، for those who circumambulate۔ والعاکفین روٹ ورڈ عین کاف فا سے ہے، معنی اور اعتکاف کرنے والے، and for those who seclude themselves to devote and prayer۔ ورکعی را کاف عین سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور رکوع کرنے والے، and those who bow down۔ السجود سین جیم دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی سجدہ کرنے والے، and those who prostrate۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا گھر، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اجتماع اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، مِن مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَحِدْنَا اور ہم نے عہد لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم اور اسماعیل سے، ان طہر بیتیا کہ پاک رکھے میرا گھر، للطائفین والعاکفین طواف کرنے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جب ہم نے بنایا گھر، اجتماع اور امن کی جگہ لوگوں کے لیے، اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ پاک رکھیں میرا گھر، طواف کرنے اور اعتکاف کرنے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ and when we made the house، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا a place of assembly and safety، وَاتَّخِذُوا and take، مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى the standing place of Ibrahim as a place of prayer، وَحِدْنَا and we made covenant، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ with Ibrahim and Ismail، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ that they shall purify my house، لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ for those who circumambulate، and for those who seclude themselves to devote and prayer۔
वरुक्काई सुजूद and those who bow down and those who prostrate. Complete translation देखें इस वर्स का. And when we made the house a place of assembly and safety and take the standing place of Ibrahim as the place of prayer, and we made covenant with Ibrahim and Ismail that they shall purify my house for those who circumambulate and for those who seclude themselves to devote and prayer and those who bow down and those who prostrate. तशरीह कलिमात देखें यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. अलबैता इंसान का रात का ठिकाना बाद में मकान व मंजिल के लिए इस्तेमाल किया गया. यानी बेसिकली बैत रात के ठिकाने को कहते हैं, लेकिन बाद में यानी थोड़ा वक्त गुजरने के बाद इसको मकान और मंजिल के मानों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा. मसाबा जाए बाज़गश्त यानी जहाँ पर रिपीटेडली आदमी रिपोर्ट करता है, लौट कर आता है. इस्माइला इब्रानी लफ्ज है यानी हेब्री वर्ड है जो एशमा यानी समा और इल यानी अल्लाह से मुरक्कब है, जिसका माने है समु मिन अल्लाह यानी अल्लाह को खूब सुनने वाला. इन शॉर्ट इस्माइल अल्लाह को खूब सुनने वाले को कहते हैं. अब देखते हैं तफसीर आयत. अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना, और जब हमने बनाया घर इज्तिमा और अमन की जगह लोगों के लिए. मसाबतन से मुराद बार बार आना है यानी बार बार लौट कर आना मसाबतन कहलाता है, या ऐसी जगह जहाँ पर बंदा बार बार लौट कर आता है. हज करने से भी दिल में लगन रहती है, गोया हज करने के बाद भी हर बार दिल में एक बार और हज करने की तमन्ना रहती है, क्योंकि जो बंदा हज करता है या तवाफ करता है उसको ये ख्वाहिश रहती है कि वो लौट कर फिर इस जगह आए. दुनिया के हर गोशे से लोग भागे दौड़े उसकी तरफ जोख दर जोख चले आते हैं. यही जमा होने की जगह है और यही अमन का मुकाम है जिसमें हथियार नहीं उठाया जा सकता. यानी सारे दुनिया के मोमिन बंदों के लिए अल्लाह ताला ने इस मुकाम को अप्रोच करने का हुक्म दिया है और इस मुकाम को एक अमन का मुकाम करार दिया है. जाहिलियत के दौर में भी इसके आसपास तो लूट मार होती रहती, लेकिन यहाँ अमन व अमान ही रहता. यानी ज़माने क़दीम से इस मुकाम को अल्लाह ताला ने अमन का मुकाम करार दिया. यहाँ तक कि जहालत के दौर में भी यहाँ पर कोई फसाद, कोई झगड़ा, लूट मार नहीं होती थी. बैतुल्लाह ज़मीन पर सबसे पहला अल्लाह का घर है. इसका जिक्र सूरह आल इमरान में आता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन. बेशक लोगों के वास्ते जो सबसे पहला घर मुकर्रर हुआ यही है जो मक्के में बरकत वाला है और जहाँ के लोगों के लिए रहनुमा है. मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम व मन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफरा फइन्नल्लाहा गनियुन अनिल आलमीन. इसमें जाहिर निशानियां हैं, मुकाम इब्राहीम है, और जो उसमें दाखिल हो जाए वो अमन वाला हो जाता है. और लोगों पर इस घर का हज करना अल्लाह का हक है. जो शख्स उस तक पहुँचने की ताकत रखता हो और जो इनकार करे तो फिर अल्लाह जहां वालों से बेपरवाह है. इस आयत में अल्लाह ताला कई बातें फरमाते हैं. मक्के में अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं. उनमें अव्वल तो बैतुल्लाह है और फिर मकाम इब्राहीम है जो उसके सहन में है, और अल्लाह ने उसको अमन का मुकाम बनाया, वो भी अल्लाह की निशानियों में है. और फिर दुनिया भर के मोमिन बंदों के लिए जो इस्तिताअत रखते हैं उन पर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया. और अल्लाह के इस हुक्म का जो इनकार करता है तो फिर अल्लाह ताला उससे गनी है. मक्के की हुर्मत के सिलसिले में हदीस देखें. सफिया बिन शीबा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्के के साल खुतबा देते हुए सुना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, अल्लाह ने मक्के को उसी दिन हराम करार दे दिया जिस दिन उसने आसमान व ज़मीन को पैदा किया, और वो क़यामत तक हराम रहेगा. यानी मक्के की ज़मीन को, शहर मक्का को उसी वक्त अल्लाह ने हराम करार दे दिया जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए, और यह हुर्मत क़यामत तक कायम रहेगी. न वहाँ का दरख्त काटा जाएगा, न वहाँ का शिकार बिदकाया जाएगा, और न वहाँ की गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाएगी. अलबत्ता ऐलान करने वाला उठा सकता है. इस पर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा असखर नामे घास का उखेड़ना जायज़ फरमा दीजिए क्योंकि वो घरों और खबरों के काम आती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा असखर उखाड़ना जायज़ है. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को खाना भी मना किया, वहाँ शिकार करना मना किया, यहाँ तक कि गिरी हुई चीज़ भी उठाना मना कर दिया. ये और बात है कि कोई उसके मालिक को ढूंढने के लिए ऐलान करना चाहे तो इस ऐलान पर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिक्वेस्ट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुशबूदार घास जिसका नाम असखर है उसको उखेड़ने की इजाज़त दे दें, क्योंकि वो घरों और खबरों में इस्तेमाल की जाती है.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका उखाड़ना जायज करार दे दिया। एक और हदीस देखें मक्के की हुर्मत के सिलसिले में। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मक्के को हराम किया है, न मुझसे पहले किसी के लिए यहाँ कत्ल व खून हलाल था और न मेरे बाद होगा, और मेरे लिए भी थोड़ी देर के लिए फतेह मक्का के दिन हलाल हुआ था। बस न उसकी घास उखाड़ी जाए, न उसके दरख्त खलम किए जाएं, न यहाँ के जानवरों को शिकार के लिए भगाया जाए, और सिवा उस शख्स के जो ऐलान करना चाहता हो कि गिरी हुई चीज किसकी है, किसी के लिए वहां से कोई गिरी हुई चीज उठाना जायज नहीं। इस पर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन इस असखर का इस्तिस्ना कर दीजिए कि ये हमारे सुनारों के और हमारे खबरों में काम आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर असखर की इजाजत है, यानी सिर्फ फतेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़े वक्त के लिए हथियार उठाने की इजाजत दी गई थी, न उससे पहले मक्के की हुर्मत को कम किया गया, न ही वाक़े के बाद मक्के की हुर्मत कभी कम होगी। तफसीर आयत मजीद फोकस करें। खाने काबा को अल्लाह ताला ने कई वजूहात की बिना पर आलमी मरकज करार दिया है, यानी सारी दुनिया के लिए ये सेंट्रल प्लेस रखता है इस्लाम में। उसकी कई वजूहात हैं। अव्वल है मुकाम वही होने के लिहाज से मरकज शरीयत व अहकाम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वतन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरना यहीं से शुरू हुई, इसीलिए यहीं से सारी दुनिया को इस्लाम की तालीमात फैली, शरीयत व अहकाम दुनिया वालों तक पहुँचाए गए। तहरीक व इनकलाब के लिहाज से तहरीक इब्राहिमी व इनकलाब मोहम्मदी का मरकज़ है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब लाया इस्लाम की शक्ल में दुनिया में, उसकी बुनियाद भी यही मुकाम है। इबादत के लिए ये क़िबला आलम है, हज के अंजाम दही के लिए मरकज़ मुस्लिमीन है, अमन व आश्ती का ये गहवारा है। चुनांचे हरम के अहाते में इंसान व हैवान तो अपनी जगह, नबातात तक को भी हाथ नहीं लगाया जा सकता, यानी पेड़ पौधों को भी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हुर्मत को कायम कर दिया है। मकाम इब्राहिम की फजीलत पर भी गौर करें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बना लो। मकाम खड़ा होने की जगह को कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की दीवार उठा रहे थे तो इस पत्थर पर कदम रखते थे, जिसके सबब इस पर कदमों के निशान मौजूद हैं। लेफ्ट साइड तस्वीर में देखें, मकाम इब्राहिम को एक केज में रखा गया है और इसके करीब की तस्वीर है। इस पे जो पैरों के निशान हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हैं। इस मुकाम को अल्लाह ताला ने वाज़ेह निशानियों में शामिल फरमाया है, लिहाजा फरमाते हैं फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहिम, इसमें वाज़ेह निशानियां हैं, मसलन मकाम इब्राहिम। तवाफ में वाजिब है कि इस मकाम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी जाए। इस आयत से मकाम इब्राहिम की अजमत का अंदाज़ा होता है, यानी अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि उनके नक्शे कदम को भी इस कदर अहमियत देते हैं कि जो बंदे वहाँ पर हज उम्रे के लिए आते हैं उन पर यह वाजिब करार दिया कि वो तवाफ के बाद 2 रकात नमाज मुकाम इब्राहिम के करीब अदा करें। अल्लाह का घर पाक रखने का हुक्म भी इस आयत में आया है, जैसा अल्लाह ने फरमाया वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला अन तहिरा बैतिया, और हमने अहद लिया इब्राहिम और इस्माइल से के पाक रखे मेरा घर। यहाँ काबे की पाकी और रौनक अफजाई का एहतमाम फरमाया जा रहा है, यानी इस आयत में अल्लाह ताला काबे की पाकी और उसकी रौनक अफजाई का इंतजाम कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से अहद लेकर देखें, हुक्म है ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम, हर आलायत से, हर आलूदगी से इसे पाक व साफ रखो, उसका फर्श गुब्बार से, उसकी दीवारें बदनुमा धब्बों से और उसकी छतें मकड़ी के जालों से ना अटी रहें, बल्कि उजला फर्श, शफाफ आयनादार दीवारें और पाक व साफ छतें हों, ताकि इबादत करने वालों को दिल जमाई नसीब हो और वो इत्मीनान से अपने रब की याद करते रहें। जब ज़ाहिरी पाकीज़गी का इतना एहतमाम हो रहा है तो सोचें कि कुफ्र व शिर्क की गिलाजत व आफत से इसे पाक रखना कितना ज़रूरी होगा, यानी उसका फिजिकल क्लीनलीनेस को अल्लाह ताला इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो सोचें कि अकीदे में मिलाजत लाने का तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वहाँ पर गैर अल्लाह की मूर्तियाँ व तस्वीर रखकर, जैसा कि जहालत के दौर में हुआ करता था। हज़रत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम से इस घर को पाक रखने का अहद लेने से अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला अपने इस घर को कितनी अहमियत देता है। उसको बैती कहकर, यानी मेरा घर कहकर अल्लाह ने इसकी निस्बत अपनी तरफ की और इसकी शान व इज्जत को बुलंद किया। पाक रखने का मतलब यह है कि जो चीज़ भी इस घर की हुर्मत यानी एहतराम के मनाफी हो, इससे इस घर को पाक रखा जाए, यानी सिर्फ ज़ाहिरी पाकिज़गी ना हो, बल्कि जो अकीदे में
मिलावट करने के काम आए ऐसी चीजें भी यहाँ से दूर रखे जाएं। चुनांचे बुतों के साथ साथ दीगर तमाम खराफा से पाक रखना भी जरूरी और वाजिब है। तवाफ करने वालों के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए, रुकू व सुजूद करने वालों के लिए इसको पाक रखने का हुक्म इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्तकबिल में भी ये घर तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सजदा करने वालों का मरकज रहेगा। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला ने जो अहद लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, दरअसल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क़यामत तक कायम रहेंगे जब तक जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई मौजूद हो। अहम नुकात यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें इस तफसीर के। काबा इंसानियत का मरकज व महवर और अमन का गहवारा है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इसको इंसानों के लिए, खास तौर पर मोमिन बंदों के लिए एक मरकज और अमन का गहवारा करार दिया गया है। बैतुल्लाह को और हर मस्जिद को हर किस्म की आलूदगियों और खराफा से पाक रखना चाहिए। इबादत गाहों को जहाँ ज़ाहिरी नजात से पाक रखना ज़रूरी है, वहाँ फिक्री व अमली खराफात और आलूदगियों से पाक रखना भी वाजिब व लाजिम है। जैसा सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वी वल आसाल। उन घरों में जिनकी ताज़ीम करने और उनमें उसका नाम याद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उनमें सुबह व शाम अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहें। यहाँ पर उन घरों से मुराद मसाजिद है, चूँकि अल्लाह ताला ने मसाजिद की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, उनकी इज्जत करने का, उनकी रेस्पेक्ट करने का हुक्म दिया है और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि सुबह व शाम अल्लाह की पाकी वहाँ बयान की जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।